Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333886. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 13 जनवरी के हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे। इसके लिए आपको नोट्स बनाने हैं। जो नोट्स डेली बनाते हैं ऐड ऑन्स कीजिए, और जो नहीं बना रहे हैं उनको नोट्स ज़रूर बनाने हैं। पेन पेपर अपना साथ लेके बैठिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा ये रिवीजन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल रोड सेफ्टी वीक की। हम जानते हैं एक्सीडेंट्स की वजह से इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी जाने जाती हैं। सबसे ज़्यादा हमें ये देखने को मिलते हैं इंडिया में ट्रेंड, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, ये बेसिकली नेशनल रोड सेफ्टी वीक क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट किए जा सके ऑल अराउंड द वर्ल्ड कि हमें रोड पे ध्यान देना है, ड्रंक ड्राइविंग नहीं करनी होती, ठीक है, ओवर स्पीडिंग नहीं करते, पूरा ध्यान रख के चलाना होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन अमेरिकन AC चरानिया जी की। इनको अभी अपॉइंट किया गया है नासा का नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। आई रिपीट, नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट कौन बने हैं? वो हैं AC चरानिया जी। नासा की अगर मैं बात करूं, इन्हीं का एक मिशन है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये इंफ्रारेड रीजन में वर्क करता है, ठीक, और इसी के द्वारा 13.4 बिलियन ओल्ड लाइट को कैप्चर किया गया थ्रू इमेजेस। फिर इसी में याद रखेंगे, इन्होंने अभी एक नया प्लेनेट को डिस्कवर किया जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कमिंग बैक, AC चरानिया जी, इनको अपॉइंट किया गया नासा का नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट, और ये इन्होंने किनको रिप्लेस किया है? भव्या लाल को इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे की। वर्ल्ड हिंदी डे की अगर हम बात करें तो ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 जनवरी को। 9 जनवरी को क्या ऑब्जर्व किया जाता है आपका? प्रवासी भारतीय दिवस। इसकी अभी 17th कन्वेंशन हुई थी। ये ऑब्जर्व क्यों किया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी 1915 में अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी किन 2 ऑर्गेनाइजेशंस को बेस्ट डिजिटल चैनल प्लेटफॉर्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया फ्रॉम IBS इंटेलिजेंस। वो रहेंगे क्लेफिन एंड बंधन बैंक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नासा के टेस मिशन ने। टेस क्या है? ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट टेस मिशन ने अभी रिसेंटली एक
अर्थ साइज ऑब्जेक्ट को, सेकंड अर्थ साइज प्लेनेट को डिस्कवर किया हैबिटेबल जोन में। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि ये जो TOI 700 है ये इनके सन का नाम है। ई प्लेनेट है जो अभी डिस्कवर किया गया है, 28 दिन लेता है ऑर्बिट करने के लिए अराउंड इट स्मॉल ड्वार्फ स्टार TOI 700। 95% इसका साइज रहेगा अर्थ का। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं BCD, इसके अलावा कुछ और प्लैनेट्स डिस्कवर किए गए थे वहीं पे। नेक्स्ट आ जाता है वनवेब, यूके की कंपनी है, यूके में की कंपनी है, ये भी एक कम्युनिकेशन बेस्ड सैटेलाइट कंपनी है। और इन्होंने लास्ट मंथ 1-2 महीने पहले ही 40 सैटेलाइट्स लॉन्च की थी। इन्होंने किसकी मदद से? SpaceX की मदद से। और ये क्या है? कम्युनिकेशन बेस्ड सैटेलाइट कंपनी है। तो इन्हीं की राइवल कंपनी कौन सी हो गई जो कि एलन मस्क के द्वारा भी ओन की जाती है? वो है स्टारलिंक। और अभी न्यूज़ आ रही है कि वनवेब की फिर से 40 सैटेलाइट्स को SpaceX के द्वारा लॉन्च किया गया फ्लोरिडा स्पेस सेंटर से। नेक्स्ट आ जाता है अभी किन 2 कंट्रीज़ के बीच में डिप्लोमेट्स को ट्रेन करने के लिए एक कॉपरेशन साइन किया गया, एक एग्रीमेंट साइन किया गया 17वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के दौरान, तो इंडिया और पनामा के बीच। फिर आ जाता है ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। ये वो पहला कोर्ट बना है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ई सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग, मतलब ऑनलाइन सिस्टम होगा सारा। अब जो आपकी फाइलिंग होगी, पेमेंट होगी, कोर्ट सर्विसेज की जो भी सर्विसेज होंगी वो आप मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हैं ऑनलाइन मोड की मदद से। तो ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो कोर्ट बना, पहला कोर्ट कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का। नेक्स्ट पे आते हैं किनको पहले डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आई रिपीट, किनको पहले डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? वो है आधार पूनावाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फिर बात करते हैं, अभी निक्केई एशिया रिपोर्ट रिलीज की गई और इसमें बताया गया अबाउट ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो आपकी कार्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं, जो भी मतलब व्हीकल होती हैं उसके बारे में बताया गया। और इसमें बोला गया कि जो इंडिया है उन्होंने सरपास कर दिया है जापान को टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट, मतलब ऑटोमोबाइल मार्केट। पहली पोजीशन पे कौन सी है? चाइना। दूसरी पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तीसरी पे पहले जापान थी, अब जापान चली गई है 4th पे और इंडिया ने जापान को सरपास कर लिया है टू बी ऑन द 3rd पोजीशन और जापान अब 4th पोजीशन पे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ राजपथ? राजपथ का नया नाम क्या है? तो राजपथ जिसको हम किंग्स वे भी बोलते थे उसका नया नाम क्या है? कर्तव्य पथ। और कर्तव्य पथ क्या सिंबलाइज करता है? पब्लिक ओनरशिप एंड एम्पावरमेंट को। इसी के साथ साथ याद रखेंगे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था और इन्हीं के द्वारा स्टैच्यू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी अनवेल किया गया एट इंडिया गेट। मैंने क्या बताया आपको, क्या क्या याद रखेंगे? राजपथ जिसको किंग्स वे कहते थे, या राजपथ जो पहले किंग्स वे होता था उसको राजपथ भी बोला जाता था। फेमस हम राजपथ के नाम से जानते थे, ठीक है, जो कि सिंबल था स्लेवरी का। अब उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? कर्तव्य पथ। और कर्तव्य पथ क्या सिंबलाइज करते हैं? किस चीज का सिंबल है? पब्लिक ओनरशिप एंड एम्पावरमेंट का ये सिंबल रहेगा कर्तव्य पथ। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया और इसी को हम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही एक और चीज को लॉन्च अनवेल किया गया था, वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू एट इंडिया गेट। काफी इंपॉर्टेंट। अगर हम न्यू दिल्ली की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे अग्रसेन की बावली, हुमायूं टॉम्ब, जंतर मंतर, ये सारे आपके कहाँ मिलेंगे? ये आपके न्यू दिल्ली में मिलेंगे। नेक्स्ट केरला पे आते हैं। केरला गवर्नमेंट के द्वारा शैली ऐप लॉन्च की गई थी जो कि एक हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन है। केरला की बात करें तो पहला स्टेट बना जिनका खुद का OTT प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जो नाम था सी स्पेस के नाम से। और यहीं पे आपका केरला में ही, अगर आपको याद हो, इनका खुद का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था। फिर अगर मैं बात करूं इंडिया के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की, इसको हैंड ओवर किया गया टू नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इन गुजरात। MHA की बात करें, उन्होंने एक MOU साइन किया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ टू रियलाइज इंडियाज ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव। हरियाणा ने लॉन्च किया ई अधिगम स्कीम को टू डिस्ट्रीब्यूट टैबलेट्स टू 3 लाख स्टूडेंट्स। काफी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ चारा बिजाई योजना भी यहीं पे आई थी। ये और चारा बिजाई योजना किस लिए थी? फोडर कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट। अग्निकुल कॉस्मोस, ये अग्निकुल कॉस्मोस क्या था? ये एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप था और ये क्यों फेमस हुए थे? जब हमने पढ़ा इसको कि इन्होंने एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किया है, मतलब रॉकेट इंजन को 3D प्रिंट किया है। आप देखते होंगे पहले हम सुनते थे घरों को, हाउस को 3D प्रिंट कर रहे हैं, स्मॉल आपके टूल्स को, छोटे छोटे मशीन्स के छोटे छोटे पार्ट्स को 3D प्रिंट किया जा रहा है, लेकिन अब तो पूरे रॉकेट इंजन को ही 3D
प्रिंट कर दिया गया अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ये चेन्नई बेस्ड एक स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप रहेगा। और अब ये वापस न्यूज में क्यों है? क्योंकि इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पेटेंट प्रोवाइड किया गया है। पेटेंट क्या होता है कि आपको उसका राइट मिल गया कि ये पर्टिकुलर चीज, ये पर्टिकुलर आपका डेवलपमेंट, ये या ये प्रोडक्ट या फिर ये आपने जो रिसर्च करके फाइंड किया वो आपका है, वो आपके नाम है। कोई उसको दूसरा कोई पर्पस के लिए यूज करेगा तो वो आपको उसको या तो रॉयल्टी देनी पड़ेगी, अगर आपके प्रोडक्ट को वो बेच रहा है तो वो आपको रॉयल्टी देगा, नहीं तो कोई ऐसे इनडायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन के, और अगर करता है तो उसके खिलाफ केस भी हो सकता है। और ये जो पेटेंट होते हैं ये 10 साल के लिए दिए जाते हैं, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी अग्निकुल कॉस्मोस को, जो कि एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है जिसने 3D रॉकेट इंजन को 3D प्रिंट किया, और ये एक सिंगल पीस है, ये याद रखेंगे, सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को इसके लिए ही पेटेंट दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। आई रिपीट, अग्निकुल कॉस्मोस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेटेंट डाटाबेस के द्वारा उनके अग्निलेट रॉकेट इंजन के लिए, जो कि वर्ल्ड का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, जो कि डिजाइन एंड डेवलप किया गया एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया इटसेल्फ, उसको पेटेंट प्रोवाइड किया गया। तो 3-4 चीज क्या हो गई? अग्निकुल कॉस्मोस याद रखेंगे, इनको पेटेंट मिला ये याद रखेंगे फॉर सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के लिए, और जो पेटेंट होता है बेसिकली 10 साल के लिए होता है वैलिड। नेक्स्ट, दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें, इन्होंने अनाउंस किया स्टार्टअप पॉलिसी टू एड द एंटरप्रेन्योर्स। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस की ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक MOU साइन किया है, एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन फॉर ट्रैफिकिंग फ्री इंडिया। कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पे हुई? जयपुर में। प्रियंका मोहाटे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, ये पहली वीमेन बनी टू क्लाइंब 5 पीक्स अबव 8000 मीटर। दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फ्री सीवर कनेक्शंस अंडर मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आसानी के नाम से कहां पे हिट किया था? आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल में। याद रखेंगे सारी चीज। और अगर मैं बात करूं दिल्ली गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट की क्या क्या चीज हो जाती है? हॉबी हब, माई ईवी, यहीं पे आ गया था पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी, यहीं पे आपके म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए, यहीं पे आपका 3rd ऑर्गेनिक एक्सपो हुआ था, और यहीं पे आपका बिगेस्ट ड्रोन मेला हुआ था। अगर मैं पहला ड्रोन मेला की बात करूं वो क्या हुआ था? ग्वालियर में। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं HDI, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? UNDP का न्यूयॉर्क में है हेडक्वार्टर, ठीक है। और अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करूं तो वहां पे लोगों की जो सिचुएशन है, उनकी जो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया होता है, वो किस तरीके से किस कंट्री में बेटर है। तो इसमें देखा जाए तो आउट ऑफ 191 कंट्रीज इंडिया की रैंक रहने वाली है 132 इन 2021-22 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और अगर मैं 2020 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करता हूं तो इंडिया की क्या रैंक रहेगी? वो तब 189 कंट्रीज में से डाटा निकाला गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, तब 2020 में इंडिया की रैंक थी 189 और 131 अमंग 189, और अब इंडिया की रैंक है 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज। याद रखेंगे UNDP के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, और जो आपका HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया जाता है किसके द्वारा? बाय UNDP, और UNDP का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में। अगर मैं यहीं पे बात करूं किस कंट्री ने टॉप किया, तो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है स्विट्जरलैंड, सेकंड पोजीशन पे आ जाता है नॉर्वे, थर्ड पोजीशन पे आ जाता है आइसलैंड। फिर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ने लॉन्च किया चारा बिजाई योजना। ये एक फॉडर कल्टीवेटिंग फार्मर्स है कि फॉडर को बढ़ाने के लिए, चारा को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। इन्हीं के द्वारा अधिगम लॉन्च किया गया था। ये क्या था? टैबलेट्स प्रोवाइड की जाएंगे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को, 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों को। फिर इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पावर किया जाएगा फूड बेस से, तो मतलब मैं कह सकता हूँ ये बायोगैस से पावर किया जाएगा। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में, और इसी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से आपकी रात को स्ट्रीट लाइट्स भी पावर की जाएंगी। फिर इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी कहाँ इनॉग्रेट किया गया था? न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी को, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फिर बात करेंगे फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट 2022 की। 142 बिलियनर्स वर्थ 832 बिलियन। इसको आप थोड़ा सा याद कैसे रखेंगे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं और इंडिया में बिलियनर्स की बात करूं तो 142 बिलियनर्स है, मिलियनर्स नहीं बिलियनर्स, ठीक है। और उनके टोटल वर्थ मिला देते हैं तो $832 बिलियन निकल के आती है, जो कि अराउंड 66.36 ट्रिलियन
रुपीज़ है। इसको क्यों याद रखना है? क्योंकि डाटा पूछ सकता है। और ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया था? फोर्ब्स के द्वारा रिलीज किया गया था। और इसमें बताया गया कि एशिया का जो रिचेस्ट पर्सन है, जो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है और जो वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन है, वो कौन है? वो है आपके गौतम अडानी। ही हैज टेकन ओवर Amazon, जेफ नहीं, ही हैज टेकन ओवर बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। ठीक है, बिल गेट्स को इन्होंने रिप्लेस करके थर्ड रिचेस्ट पर्सन ये बन गए थे वर्ल्ड में। बट जो अभी ये लिखा था वो भी कहीं ना कहीं सच हो सकता है, क्योंकि जो गौतम अडानी की नेट वर्थ है ना, वो बढ़ती जा रही है कॉन्टिन्यूसली, एंड यू नेवर नो, फ्यूचर में वो जेफ बेजोस को भी रिप्लेस कर सकते हैं टू बिकम द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आपके रिचेस्ट पर्सन तो इलॉन मस्क ही अभी वर्ल्ड के। सो कमिंग बैक फ्रेंड्स, क्या क्या याद रखना है कि इंडिया के जो टोटल रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड में, इंडिया में जो बिलियनियर्स हैं वो है 142 बिलियनियर्स। इनकी टोटल वर्थ $832 बिलियन है। और गौतम अडानी ये इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है, ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन है और वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो एशिया के थर्ड रिचेस्ट, एशिया के वो पहले व्यक्ति कौन है जो कि टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आते हैं? वो है गौतम अडानी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बैरक ओबामा के द्वारा एक 5 पार्ट की नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज लॉन्च की गई थी, जो कि आपके नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ के ऊपर है। ठीक है, इनको बेस्ट नरेटर एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो बैरक ओबामा को फॉर हिज आउटस्टैंडिंग नरेशन द बेस्ट नरेटर एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये एक 5 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री है जो कि आपके नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द वर्ल्ड पे सम्मानित है, उनके ऊपर बेस्ड है। और इसका नाम क्या रहेगा? आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन राइट चीफ। नए ह्यूमन राइट चीफ कौन बने हैं? वो हैं वॉल्कर टर्क। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं और ये वर्ल्ड के नए ह्यूमन राइट चीफ बने हैं। काफी इंपॉर्टेंट, इनके अपॉइंटमेंट याद रखेंगे। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अप्रूव किया वॉल्कर टर्क को, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, इनको टू बी द ग्लोबल बॉडीज ह्यूमन राइट चीफ बाय यूनाइटेड नेशन जनरल एंटोनियो गटर्स। ये किनको रिप्लेस करेंगे? वेरोनिका मिशेल बैचलेट जेरिया, इनको रिप्लेस करेंगे। चिलियन पॉलिटिशियन थे जिन्होंने सर्व किया था एट द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। तो OHCR 2018 से 2022 तक इन्होंने यहाँ पे सर्व किया था। और अगर मैं बात करूं UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इनका जिनेवा स्विट्जरलैंड में भी हेडक्वार्टर है, एज वेल एज न्यूयॉर्क USA में भी इनका हेडक्वार्टर रहेगा। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1993 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। तो दोस्तों, ये तो हो गए हमारे रिवीजन पार्ट। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन हाई कमीशन। इन्होंने एक MOU साइन किया एक हिंदी चेयर को इस्टेब्लिश करने के लिए साबरागमुआ यूनिवर्सिटी में, श्रीलंका में। इसका रीज़न क्या है? ताकि हिंदी के यूज़ को हम बढ़ा सकें इन श्रीलंका। वहाँ के लोग हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, हमारी वैल्यूज़ के बारे में, हम कैसे रहते हैं, हमारे जो वर्ड्स होते हैं, क्योंकि क्या होता है, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है, जब तक 2 लोगों के बीच में अच्छे से नहीं होगी ना, आप कोई काम नहीं कर सकते। इसीलिए, और इवन अगर आपने सुना हो अभी कुछ कि श्रीलंकन्स को अभी अलाउ किया गया था कि वो रुपीज़ अपने पास रख सकते हैं और रुपये में ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पर, जिसका मतलब हम ये कह सकते हैं अभी आने वाली, ये लिमिटेड अमाउंट का था, आने वाले टाइम में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि श्रीलंका को अलाउ कर दिया जाए कि वो इंडियन करेंसी को यूज़ करे फॉर देयर डे टू डे यूज़। ठीक, तो कमिंग बैक, हिंदी चेयर को इस्टेब्लिश किया गया साबरगमुआ यूनिवर्सिटी में, श्रीलंका में, और इसके लिए इंडियन हाई कमीशन ने अभी एक MOU साइन किया था इस सेम यूनिवर्सिटी के साथ, जो कि कहाँ पर है? श्रीलंका में है। नेक्स्ट पे बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अभी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट रिलीज की गई 2023 के लिए, और इस रिपोर्ट में बताया अबाउट द लिविंग क्राइसिस। अब ये किससे जुड़ा है? अब इसको आप ऐसे समझिए कि हम बात कर रहे हैं रिसेशन आने वाला है, बिल्कुल आने वाला ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, आप देखेंगे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कहीं पे खाने के प्राइस 40% बढ़े हुए हैं, कहीं पे 70% बढ़े हुए हैं, कहीं पे 100% बढ़े हुए हैं। इवन आपने अभी पाकिस्तान का हाल देखा होगा, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखी है। वहाँ पे जो खाने की चीज़ 100 रुपये की होती थी ना, वो 200 प्लस हो रखी है आज के टाइम पे। जो आपका व्हीट है वो और महंगा हो गया है। ठीक, तो और इवन बताया जा रहे हैं, आप देखेंगे तो बाहर के देशों में, आप US UK में देखेंगे, रिसेशन की वजह से जो आपके इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, जो इन्फ्लेशन की वजह से
इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, घर लोगों पे जो मंथली ईएमआई पे करते थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखेंगे बहुत सारे वहाँ पे इवन रियल एस्टेट का जो एक कहते हैं ना क्राइसिस आने वाला, जैसे 2008 में हुआ था कि जो रियल एस्टेट के प्राइस हैं बहुत कम हो गए थे। आपने चाइना में अभी देखा है रियल एस्टेट के प्राइस जो हैं वो आधे हो गए हैं। जिन्होंने मान लो 1 करोड़ का कोई कहीं पे फ्लैट लिया था चाइना में, तो अब वो आराम से 50 से 60 लाख का रह गया, बिकॉज हमने जो अभी रिसेंटली वहाँ की रियल एस्टेट क्राइसिस की बात की थी। इंडिया में बात करेंगे, इंडिया में इफेक्ट जो है इन्फ्लेशन बढ़ी तो है बिल्कुल। आप देखेंगे जो चीज़ों के प्राइस हैं वो डेफिनेटली बढ़ गए हैं। फॉर एग्जांपल मैगी की ही बात करूँ, मैगी 14 रुपीज़ का पैकेट आता था जो सिंगल पैक होता था, अब वो 15 रुपये का हो गया है। छोटा से छोटा एग्जांपल आप देखेंगे पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं। आपने कोविड के बाद से, जब से कोविड आया है, आपने सीएनजी के प्राइस देखे होंगे, वो बढ़ के अब 80 रुपये टच करने वाले हैं। इवन अडानी ने अभी गुजरात में ही 1 रुपये पर सीएनजी को बढ़ाया। तो ये क्या है, ये महंगाई हो रही है। तो सेम चीज़ कॉस्ट ऑफ जो लिविंग क्राइसिस है ना वो बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे इंडिया में बहुत ही लिमिटेड लोग ऐसे हैं, कम लोग, हमें लगता है हम चारों तरफ देखते हैं कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, लेकिन आप देखेंगे जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं अभी भी बहुत सारी जनता इंडिया में ऐसी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा है। वहाँ पे लाइट भी, अभी घरों में ऐसे गाँव हैं जहाँ पे अभी प्रॉपर लाइट भी नहीं पहुँची है, ठीक है, रोड्स नहीं है वहाँ पे प्रॉपर। तो जो ये डिजिटल डिवाइड है हम देखेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस होती है, जो महंगाई होती है, वो आप देखेंगे आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। आप इसको ऐसे भी कंसिडर करके चल सकते हैं, मान लो अभी हम कितने रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, कितनी डाटा पढ़ते हैं जिसमें बताया जाता है कि जो इन्वायरमेंट की वजह से हमें इन्वायरमेंट पे इतने बिलियन डॉलर खर्च करना पड़ेगा, हमें इन्वायरमेंट पे इतने करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे ताकि हम कार्बन न्यूट्रल हो सकें या फिर रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर सकें। या जो ट्रांजिशन होता है कि फैक्ट्री में अभी तक जो वो पॉल्यूशन था जो होता था वो हवा में छोड़ दिया जाता था, तो उसके लिए बेटर टेक्नोलॉजीज लगाने के लिए उस पर खर्चा होता है। तो बेसिकली ये जो ट्रांजिशन आएगा, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज भी हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए पैसा लगेगा। पैसा लगेगा मतलब महंगाई होगी। तो कुछ नहीं पता, आने वाले आप टाइम में देखेंगे जो ये महंगाई है वो और बढ़ती जाए, ठीक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक की फोरम की यही रिपोर्ट थी, 18वां एडिशन था, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। और इसमें बताया गया कि आने वाले टाइम में हम देखेंगे और ज़्यादा महंगाई होने वाली है। इसमें 2 की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग निकल के आई फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, मतलब आने वाले 2 साल के लिए बताया गया, 23 से 25 के लिए, कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है। हमने ये भी पढ़ा था कि आने वाले टाइम में इंडिया में जो एसी की डिमांड है ना 8 टाइम तक बढ़ने वाली है आने वाले 5 से 10 सालों में। जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशंस है, फेलियर टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज, अकरेंसेस कॉजिंग सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल डैमेज, इन सारी चीज़ों पे बात की जाएगी। आने वाले 10 सालों की बात करें 23 से 33 तक, फेलियर्स टू अडॉप्ट एंड टू mitigate climate changes, loss of biodiversity, massive involuntary migration, natural resource crisis among others। तो इन सब पे भी यहाँ पे बात की गई। फिर हम बात करते हैं, एक और रिपोर्ट रिलीज की गई, वो है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ के द्वारा, आई रिपीट, UNUINWEH, जो कि है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। इन्होंने बताया आने वाले टाइम में 2050 तक, पूरे वर्ल्ड का डाटा लेके चलिए इसको, अराउंड 1/4 20 से 25% तक का आपका जो डैम्स का यूज़ है ना वो कम हो जाएगा। अब डैम्स का यूज़ कैसे कम होगा, अब इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लो यहीं पे करते हैं, ये रिवर है, ठीक है, यहाँ पे हमने बना दिया डैम, यहाँ से पानी निकलता है। अब जब डैम बढ़ेगा, आपने देखा जब भी पानी आता है तो यहाँ पे सेडिमेंट्स भी तो साथ में आते हैं, ठीक है, इरोजन तो होता ही है। आपने देखा पहाड़ों का, जब पहाड़ों पे बारिश होती है तो वहाँ से उनके जो मिनरल्स पहाड़ों पे वो नीचे आ जाते हैं एज सेडिमेंट्स। अब ये सेडिमेंट्स यहाँ पे जमा होते जा रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं। तो क्या है, जो अमाउंट ऑफ वाटर जो ये होल्ड कर पाता था, पहले मान लो इसको यहाँ तक भरने के बाद ये निकलता था, अब आधी जगह पे तो मिट्टी आ गई है, अब इतनी मिट्टी हो गई है तो यहाँ पे पानी पानी रहेगा। तो जो सेडिमेंट्स नीचे इकट्ठे हो रहे हैं उसकी वजह से जो कैपेसिटी है पानी को होल्ड करने की डैम्स की, वो कम होती जा रही है। या तो हम यहाँ पे भी डैम बढ़ाते रहें तब
इक्वल हो कि जितना नीचे सेडिमेंट जमा हो रहा है 1-2 साल में उतना ही हमने ऊपर कंस्ट्रक्शन कर ली, या तो वो सॉल्यूशन। नहीं तो क्या है कि अगर इसकी कंस्ट्रक्शन ऊपर नहीं होती है, वैसे कंस्ट्रक्शन तो ऐसे ऊपर होगी नहीं, लेकिन जो एक डाटा रिलीज किया गया वो बताया गया है यहाँ पे कि उसकी वजह से हम डैम्स की जो कैपेसिटी है ना 1/4 तक लूज कर देंगे बाय 2050। ठीक है। अब इसी में आपको देखना है कि सबसे पहले बात की गई इंडिया की, कि इंडिया में अराउंड 3700 ऐसे डैम्स है जिनकी जो कैपेसिटी है वो 26% तक लूज हो जाएगी बाय 2050। और यहीं पे अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में भी 24 से 28% की कैपेसिटी लूज हो जाएगी ऑफ अराउंड 550,000 डैम्स बाय 2050। अगर अभी हम देखें, दीज रिजर्वर्स हैव ऑलरेडी लॉस्ट 13 to 19% ऑफ देयर कैपेसिटी ड्यू टू सेडिमेंटेशन, और 2050 तक ये 13 से 19% बढ़ के आराम से 25 से 30% हो जाएगा आपका। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं ओएजी की पंक्चुअलिटी रिपोर्ट की। इस पंक्चुअलिटी रिपोर्ट में बेसिकली क्या रिलीज किया गया कि जो आपकी फ्लाइट्स हैं क्या वो टाइम पे हैं, क्या जो भी प्रोसीजर हो रहा है वहाँ पे, जो आपके लगेज चेकिंग होता है या फिर आपका लगेज के लिए होता है या फिर मान लो आपकी जो बोर्डिंग हो रही है, क्या वो सारी चीज़ें टाइम पर हैं। तो उसके हिसाब से एक पंक्चुअलिटी रिपोर्ट रिलीज़ की गई, और इस ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए इंडिया के इंडिगो एयरपोर्ट, जो इंडिगो एयरलाइन है, एयरपोर्ट नहीं, इंडिगो एयरलाइन एंड कॉम्बित्योर एयरपोर्ट, ये 2 एयरपोर्ट और एयरलाइन है जिनको वर्ल्ड के 20 मोस्ट पंक्चुअल एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट्स में ग्लोबली विद ऑन टाइम परफॉर्मेंस की लिस्ट में मार्क किया गया। यहीं पे अगर मैं बात करूं, जो आपका कॉम्बित्योर एयरपोर्ट है ये तो रहेगा 13th पोजीशन पे, और जो आपका इंडिगो एयरलाइंस है ये रहेगी आपकी 15th पोजीशन पे। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया में स्टार्टअप की। हम जानते हैं इंडिया में स्टार्टअप कल्चर को बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया जा रहा है, स्टार्टअप्स को एंकरेज किया जा रहा है, एंटरप्रेन्योर्स को एंकरेज किया जा रहा है, इवन एमएसएमईज को बढ़ाया जा रहा है। एमएसएमईज भी तो देखा जाए तो एक छोटे लेवल पे स्टार्टअप ही तो होते हैं, उनको भी बूस्ट दिया जा रहा है। इवन अगर आपने पढ़ा हो, तेलंगाना हैदराबाद में टी हब बनाया गया था 2.0। ये रीज़न क्या था कि इकोसिस्टम को बूस्ट देना है। आप देखेंगे दिल्ली सरकार की कितनी स्कीम्स हैं जो कि स्कूल में ही बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ धकेल रही हैं, और उनको वहाँ पे इवन थोड़ा अमाउंट का फंडिंग भी प्रोवाइड करती हैं ताकि वो अपने इस फील्ड में जा सके। ऑलराइट, तो बेसिकली एक तरीके से ओवरऑल देखें तो स्टार्टअप में को बढ़ावा देने की बात की जाएगी, लेकिन वहीं पे ऑन द अदर हैंड हम देखेंगे जो फंडिंग है स्टार्टअप्स में वो कहीं ना कहीं डिक्रीज कर गई है ऑलमोस्ट बाय 1/3, ऑलमोस्ट बाय 33% से हमें डिक्लाइन देखने को मिला बाय $24 बिलियन इन 2022। ठीक, और ये स्टार्टअप ट्रैकर फॉर कैलेंडर ईयर 2022 का डाटा है। नेक्स्ट पे बात करते हैं एनपीसीआई की। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी क्या किया, यूपीआई ट्रांजैक्शन को 10 कंट्रीज में अलाउ कर दिया। इससे क्या होगा, जो एनआरआईज हैं वहाँ पे उनके जो इंटरनेशनल नंबर्स हैं उनको अपने अकाउंट नंबर से लिंक करना होगा, जैसे इंडिया में करते हैं हम अपने बैंक अकाउंट से लिंक, और उससे क्या होगा फिर वो यूपीआई को यूज़ कर पाएंगे, नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन बाहर अगर वो आपस में, अगर मैं किसी अपने दोस्त को जो कि एनआरआई है उसको, और वो इन दिस कंट्रीज से आता है, तो उनको मैं ईजिली यूपीआई पैसे कर सकूंगा और वो मेरे को कर सकेंगे ईजिली। अब ये 10 कंट्रीज कौन सी हैं, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई और यूके। इवन अगर आपने पढ़ा हो वर्ल्ड लाइन ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ टाइप किया था कि यूपीआई के यूज को बढ़ा सकें यूरोप में। ठीक, श्रीलंका की हमने बात की, श्रीलंका में रुपी को बढ़ाने की भी बात की जाएगी, क्योंकि वहाँ के सिटीजन्स को भी बोला गया है कि आप लिमिटेड अमाउंट का मनी अपने बैंक में रख सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, बजाज अलायंस लाइफ, पंजाब बैंक और सिंध बैंक, इन तीनों के बीच में भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की गई थी, तो याद रखेंगे ये भी आप। ठीक, इससे क्या होगा, एक दूसरे के जो अलायंस, वो बैंश्योरेंस कह सकते हैं बेसिकली, तो अलायंस, बजाज अलायंस अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पंजाब और सिंध बैंक के कस्टमर्स को ईजिली सेल ऑफ कर सकता है। फिर हमने पढ़ा था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में, हमने पढ़ा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में,
ठीक है। और ये क्या थे, बेसिकली फिक्स्ड अमाउंट के लिए आपको रिटर्न मिलता रहेगा एक परसेंटेज का, और कुछ ईयर्स का इसका टाइम पीरियड जो होता है लॉक इन पीरियड होगा, और उसके बाद आपको फिर ये अमाउंट मिल जाएगा। ग्रीन बॉन्ड्स आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे, यहाँ पे बनाने की बात की गई। और गोल्ड बॉन्ड्स बेसिकली सिंपल गोल्ड में इन्वेस्ट करना। तो सिमिलरली एक्सिम बैंक के द्वारा अभी $1 बिलियन रेज करे गए इन सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड जो आपके बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, क्लीन एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, हाउसिंग अच्छी हो, सस्टेनेबल वाटर हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इन सब के ऊपर 10 साल के लिए $1 बिलियन के बॉन्ड्स को जनरेट किया गया, रेज किया गया बाय एक्सिम बैंक। नेक्स्ट, आईआईटी कानपुर जो यूपी में है, इन्होंने सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए कि हम कैसे टेक्नोलॉजीज की मदद से कार्बन को रिड्यूस कर सकते हैं, कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कर सकते हैं, कैसे हम एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबिलिटी पे भी ध्यान देना है। इवन जो सेक्टर्स हैं इंडिया के, जैसे अगर मैं बात करूँ स्टील, आपका पावर सेक्टर जहाँ पे एनर्जी जनरेट की जाती है, लोहा बनता है, ठीक, ऐसे सेक्टर्स में जहाँ पे अगर हमारा कार्बन रिलीज हो रहा है, हम कैसे उनको कंट्रोल करें। इसी के लिए आईआईटी कानपुर ने RITES के साथ एक MOU साइन किया। RITES क्या है, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। नेक्स्ट बात करते हैं नासा की। कहाँ का, USA का क्या है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रिलीज किया था, हमें पता है बिल्कुल, और इसी ने अभी एक पहला अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया है। ठीक, ये एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है, LHS-45b। ये एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 99% अर्थ के जितने साइज का है। ठीक, इट विप्स अराउंड इट स्टार ओनली इन 2 days। और ये जो आपका LHS-47b है, ये इन द कॉन्स्टिलेशन ऑफ ऑक्टेंस में लोकेटेड है, जो कि सिर्फ 41 लाइट ईयर्स अवे है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, सोनी स्पोर्ट्स ने अभी हुंडई आयोनिक 5 एंड सैमसंगाइट एंड पैनासोनिक, इनको अपना स्पॉन्सर बनाया है फॉर ऑस्ट्रेलियन ओपन। इनमें से अगर मैं बात करूं, आपके पैनासोनिक को इसको एसोसिएट स्पॉन्सर बनाया है, और जो आपके को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर हैं वो रहेंगे हुंडई आयोनिक 5 एंड सैमसंगाइट। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी की। इनके द्वारा भी एक बुक को रिलीज किया गया जिसका टाइटल है ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म। आई रिपीट, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी के बुक रिलीज की गई इन्होंने, जिसका टाइटल रहेगा ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म। ठीक, ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टोरी इन न्यू दिल्ली, इस बुक को रिलीज किया गया था, लॉन्च किया गया था बाय मनसुख मांडविया। इस बुक को ऑथर किया गया है आशीष चंदौरकर एंड सूरज सुधीर के द्वारा, और पब्लिश किया जाएगा रूपा पब्लिकेशंस के द्वारा। इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी एक बुक की कॉपी यहाँ पे भेजी गई है। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल यूथ डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है, 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व करते हैं। और किनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, ये है स्वामी विवेकानंद, एक हिंदू स्पिरिचुअल लीडर, फिलोसफर, रिफॉर्मर थे, जिनके बर्थ एनिवर्सरी पे हम 12 जनवरी को ये ऑब्जर्व करते हैं। 2023 में 12 जनवरी को अगर हम बात करें तो 160वां बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई विवेकानंद जी की। और ऑन नेशनल यूथ डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल को भी इनॉग्रेट किया, जो कि 12 से लेके 16 जनवरी के बीच में है। कहाँ पर, कर्नाटका में, नेशनल यूथ फेस्टिवल। ठीक, फिर जो ये नेशनल यूथ फेस्टिवल है, इसकी थीम क्या याद रखेंगे, विकसित युवा विकसित भारत, ये थीम रहेगी कौन से, 26वें नेशनल यूथ फेस्टिवल की, और 160वीं बर्थ एनिवर्सरी थी 2023 में। नेक्स्ट पे आते हैं, मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा, इन्होंने एक शेयर्ड बस स्कूल बस सिस्टम को लॉन्च किया, और एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल सिस्टम को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया। ये जो आपकी बसेस लॉन्च की गई हैं, ये बेसिकली स्टेम का पार्ट है। स्टेम्स क्या है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड एफिशिएंट मोबिलिटी सोसाइटी प्रोग्राम। ये क्या है कि आपकी ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन को ईजी करने के लिए, और हम जानते हैं अब ट्रैफिक कितना ज़्यादा हो जाता है,
आप अपने लोकल एरिया में भी देखते होंगे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करने के लिए शिलोंग मेघालय में ये स्टेप उठाया गया कि जो बसेस हैं, स्कूल बसेस हैं, उनको शेड किया जाए। हर स्कूल की अपनी बस ना हो, शेड होगी तो क्या होगा, ट्रैफिक कम होगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। फिर नेक्स्ट है OTPC एंड APDCL, इन दोनों के बीच में भी एक MOU साइन हुआ ताकि 250 मेगावाट की एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज यूनिट को डेवलप किया जा सके असम में। ठीक है, अगर पूछा जाएगा 250 मेगावाट की बैटरी एनर्जी स्टोरेज यूनिट इंडिया में कहाँ डेवलप कर रहा है OTPC, तो वो असम में डेवलप कर रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं IAS ऑफिसर, जो 1989 बैच की IAS ऑफिसर है। ये पहली वीमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है तेलंगाना की, और इनका नाम क्या है, A शांति कुमारी। आई रिपीट, A शांति कुमारी, ये इंडिया की पहली वीमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है तेलंगाना की, जो कि पहली वीमेन है। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग, कौन है ये, 1989 बैच की IAS ऑफिसर है। ठीक, और इनका जो टेन्योर है ये वीमेन चीफ सेक्रेटरी का 2025 तक रहेगा। चलिए अब आ जाते हैं वन लाइनर रिवीजन पे। इंडियन हाई कमिश्नर ने साइन किया एक MOU टू इस्टेब्लिश हिंदी चेयर एट साबरगुआमा यूनिवर्सिटी श्रीलंका में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, डिजिटल इनइक्वालिटी अमंग इंडियन रिस्क। फिर अराउंड 3700 इंडियन डैम्स विल लूज देयर 26% कैपेसिटी, और ऑल अराउंड द वर्ल्ड बात करें तो 50,000 तक कुछ डैम अपनी लूज कर देंगे कैपेसिटी ऑफ अराउंड 20%, 20 to 30% के बीच में 2050 तक। फिर OAG की पंक्चुअलिटी रिपोर्ट रिलीज की गई, इसमें इंडिया की इंडिगो एयरलाइंस और कॉम्बिटेयर एयरपोर्ट को लिस्ट किया गया। देन NPCI ने अलाउ किया UPI ट्रांजैक्शन को फॉर NRIs ऑलमोस्ट इन 10 कंट्रीज। बजाज अलायंस इंश्योरेंस ने और पंजाब बैंक और सिंध बैंक ने एंटर हुए ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंडर। RBI ने अप्रूव किया ग्रांट इन प्रिंसिपल फॉर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस टू एनकैश। RITES ने एक साइन किया एक MOU विद IIT कानपुर टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज इन सस्टेनेबल सेक्टर। फिर नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया फर्स्ट अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट। सोनी स्पोर्ट्स ने हुंडई आइकॉनिक 5, सैमसंगाइट एंड पैनासोनिक को अपना स्पॉन्सर बनाया फॉर ऑस्ट्रेलियन ओपन। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी की बात करें तो उन्होंने बुक लॉन्च की जिसका टाइटल है ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा, इन्होंने लॉन्च किया एक शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम टू कंजेशन को कम करने के लिए, एंड एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल स्कीम को। OTPC APDCL ने साइन किया एक MOU फॉर 250 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज इन असम। IAS ऑफिसर A शांति कुमारी, इनको अपॉइंट किया गया पहला वीमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। एक्सिम बैंक की बात करें, इन्होंने रेज किया $1 बिलियन को थ्रू अ 10-year सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड इशुएंस, 10 साल के लिए। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पे। पहला, कुमारकोम एंड ब्योपोर, ये आपके जो सेलेक्ट किए गए हैं अंडर द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम, ये कहाँ पर लोकेटेड है। सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर एंड इंटीग्रेटेड ऑम्बर्समेंट स्कीम, ये किससे रिलेटेड है। थर्ड, व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे। फोर्थ, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये किस स्टेट में लोकेटेड है। और पांचवा, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड अ न्यू सिस्टम टू मेजर ग्रेड हॉस्पिटल परफॉर्मेंस अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। ऑलराइट, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके क्या व्यूज़ हैं ऐसे सेशन पे। क्या आप चाहते हैं हम ये सेशन फ्यूचर में लाते रहें? अगर चाहते हैं और पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। इसी के साथ साथ डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स एंड मंथली बेसिस पे हम करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं। साथ ही साथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी अपलोड करते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐप्स एंड वेब पोर्टल्स, ठीक है, इन सारी चीज़ों का आपको पढ़ाया जाता है, ध्यान रखा जाता है, ताकि बच्चों की जो रिवीजन है वो अच्छे से होते रहे। ठीक है, इसी के साथ साथ आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं मेरी और वीडियोस बाय करंट अफेयर्स बाय विकास राणा, जहाँ पे आपको इजीली मेरे सारा कंटेंट मिल जाएगा जो हम अफेयर्स क्लाउड पे
अपलोड करते हैं। इसी के साथ साथ आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.